जब पूरा वर्ल्ड बिलीव कर रहा है कि एआई के आने से जॉब चली जाएगी, वहीं ये कह रहे हैं कि और न्यू जॉब्स आएंगी। ये अमेजॉन हेडक्वार्टर्स इन सिएटल में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर रह चुके हैं। केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वर्ल्ड के टॉप बिजनेस स्कूल में से एक है। वहाँ से एमबीए कर चुके हैं और इंडिया के 300 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने टेक सॉल्यूशंस बिल्ड किए हैं फॉर चिल्ड्रन जिनके पास ट्रेडिशनल रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं होता। एंड देन ही co-founded एशियाज फर्स्ट स्टार्टअप फोकस बिजनेस स्कूल ताकि इंडिया के स्टार्टअप्स को वर्ल्ड क्लास लीडर्स मिल सके। आज के हमारे गेस्ट हैं वरुण लिमाय, co-founder ऑफ मेसा स्कूल ऑफ बिजनेस। इस कॉन्वर्सेशन में हम उनसे जानेंगे एआई से न्यू जॉब्स कैसे आएंगी, स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं और उन्हें कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, और क्यों फाउंडर्स को कंटेंट क्रिएट करना ज़रूरी हो गया है आज के ज़माने में। ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए। एंड टू नो मोर अबाउट मेसा स्कूल ऑफ बिजनेस, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। You run a startup school, right? Yeah. Right. That's a main thing which I found out, that it's कि startup करना सिखाते हो लोगों को। ये कैसे होता है? Like how is that possible? Honestly tell me, can you teach somebody how to build startup? Let me try to give you a picture there, right? Ki why startups? Let's try to look at let's look at the job market, high level पे. Right now I'm not looking at startups. I'm looking at like everything. Every year 1 million, लगभग ये सब लगभग है, 1 million white collar jobs are created. Okay. There are 8 to 9 million undergrads who graduate every year. So up already you're seeing the mismatch. कि 1 million versus 8 to 9 million who are graduating. हर job available के लिए 9 graduates. 9 graduates ready with degree every single year. Now let's look at this 1 million. 1 million 10 लाख हो गया. उसमें से लगभग 15% आज की तारीख में आईटी से आता है। आई थिंक 40% जीसीसी से आता है, विच इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो एसेंशियली अगर किसी ने सुना नहीं रहेगा उनके बारे में तो दे शुड रीड अबाउट इट। एसेंशियली कई सारे फॉरेन कंपनीज है, दे आर मूविंग सम ऑफ देयर ऑपरेशंस टू इंडिया, एंड सम ऑफ दीज आर बैक एंड ऑपरेशन, सम ऑफ देम रिसर्च है, प्रोडक्ट है, व्हाटएवर, राइट। 40% लगभग जीसीसी से आता है। 15% करंटली स्टार्टअप से आता है, okay, which is a large number. I mean, 15% स्टार्टअप से आता है, 10% बैंकिंग से आएगा। I would say only 5% comes from manufacturing, 3% is government, and then 7% is others, and somehow 100% आपका startups are bigger than governments. Startups are bigger than government. So startups currently are 15% of the 1 million that gets added. Now, if you think about it, साल startup ज़्यादा job create कर रहे हैं than government, yes, then manufacturing, then banking. But I'll tell you what, that is that data is true. Yeah, बैंक से ज़्यादा startups create कर रहे हैं, government से ज़्यादा startups create कर रहे हैं, manufacturing से ज़्यादा. That's insane. And if you think about the pool also, right? 10 years पहले 1-2 लाख लोग काम करते थे, आज 20 लाख लोग काम करते हैं स्टार्टअप्स में। So 10 साल पहले 1 लाख, आज की तारीख में 20 लाख. Like that, pretty sick. That growth has been like insane. और ये जो परसेंटेज है ना, by the way, 15%, ये कम है as compared to some of the other countries. So if you compare this to a China and the US, there the numbers are like 70%. Like that's the, but see also, I mean, startups is not the right way to look at it, because there can be a manufacturing startup also. So let's have that caveat in mind. But a good 10 to 15% is being created by startups. Now let me quote a number to you. ये मैंने जब पढ़ा, मतलब मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था. Let's look at unemployment rates. Okay. People who don't have a degree, unemployment rate is 3%. People who, and all of these are official figures, people who have a degree, unemployment rate is 30%. Okay. IITians who graduated in 2024, unemployment rate is 40%. What are you saying? You would have intuitively thought that it was the other way around. But you know what this shows? What this shows is that when you get a degree, your expectation of what you should get out of a job, the salary that you should get, goes up.
and there is no clear data on this, but essentially my hypothesis, or what I can draw out of this data, which is insane, is that the quality or the payment that people get in white collar jobs is a massive long tail. मतलब अगर आपने data निकाला, I can probably bet on it that out of these 1 million jobs, the number of jobs that will be paying you more than 5 lakh are less than 2%. So less than 20,000 of all the jobs that exist out there. Massive problem. So it's very weird. The more you study, the more unemployed you are. And that's because the quality of these jobs in India is very, very, very like Bad. substandard at current rates. And now let's look at these jobs also in general, right? A lot of these jobs are back-end roles. Like अगर मैं वो 20,000 में से निकालूं, तो I would say that out of those 20,000 also 75% are back-end roles. जहाँ पे you're not getting to meet the leadership, you're not getting to meet customers, you're doing something repetitive. You can easily be replaced with AI, right? अगर हम लोग वापस आए, 1 million jobs थे, हम लोग ने काट के 5% तक पहुंचे, 2% तक पहुंचे, उसमें से 75% भी हटा दिए, तो कुछ बचा ही नहीं. वी आर एट दैट स्टेज राइट नाउ जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टेटस को चलता रहा, देयर आर नो जॉब्स टू कम्पीट फॉर. कंट्री में जॉब्स ही नहीं रहेगी, है ही नहीं, अभी भी है ही नहीं. और अगर एंड दैट्स वाई स्टार्टअप्स, इफ इंडिया हैज टू बिल्ड अ फ्यूचर विच इज अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, we will need to be driven by startups. We will need to be driven by new ventures. We cannot be relying on the jobs. We cannot be relying on the existing ventures. हमें कुछ ना कुछ तो, हम जो existing companies है, existing startups है, जो jobs provide कर रहे हैं, उन पर rely नहीं कर सकते हम लोग rely, because it's going to be difficult. But मुझे एक मैं आपको change बताता हूँ. मेरा ये prediction है, okay, and this is something that I keep saying, कि India has been an economy which has been driven by the 10 into 1000 model. Basically हमारे पास 10 बड़े companies है जो thousands of लोगों को jobs देते हैं. जैसे IT हो गया, मैंने जैसे बोला कि एक टाइम पे at their peak there were 5 companies that together used to create 2.5 lakh jobs out of this 1 million jobs. ये TCS, Wipro, Infosys. So we were like these large conglomerates, 10, right? मुझे ऐसा लगता है ये इक्वेशन ना पूरा फ्लिप हो जाने वाला है. Jobs, I genuinely feel that jobs are not going to be lost, and we'll come to that later on. I am taking a counter point of view on jobs. मेरे हिसाब से नए jobs आएंगे. But like 10,000 लोग 100 लोगों को जॉब देंगे instead of that exactly. 100 companies. हाँ, मुझे ऐसा लगता है rather than 10 into 1000, 10,000 जॉब थे, मेरे हिसाब से वो 1000 into 10 हो जाएगा. There will be 1000 companies that will employ 10 people each, and there will be 10,000 jobs. But the point is कि जो पहले 10 entrepreneurs थे वो 10 ही थे, अब 1000 होने पड़ेंगे. पहले जो एम्प्लॉइज थे वो 1000 थे, वो 10 होने पड़ेंगे. इसका मतलब ये है कि वो 10 को 1000 लोगों का काम करना पड़ेगा. तो स्किल्स लैंडस्केप पूरा चेंज होने वाला है. एंड मेरे लिए तो ये एक्चुअली डूम्सडे सिनेरियो नहीं है. मुझे ऐसा लगता है दिस इज द मोस्ट हिस्टोरिक एक्साइटिंग टाइम टू बी अलाइव इन एज अ 20-year-old. क्यों? Isn't it scary कि मैंने आज तक जो पढ़ा 14, 15, 16, 20 साल, उसकी वैल्यू शिट. मैं जा रहा हूँ कचरे में. मैं जो आज सीख के जिस उम्मीद से बाहर निकलता हूँ, वहाँ मुझे पता चलता है कि भैया आपकी स्किल वैल्यूबल ही नहीं है. आपने इतने टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी, अब ये तो कंप्यूटर बना पा रहा है. देन आपने इतनी मुश्किल से एक ब्रांड बनाई और एक डिग्री लेके आया आप, ठीक है, उसमें बड़ी कंपनीज बोल रही है अरे ये वाली डिग्रीज और ये वाली जो वैल्यू थी ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें कुछ और चाहिए. लाइक इट जस्ट लेफ्ट राइट सेंटर, वैल्यू तो जीरो है. तो मेरे लिए बहुत स्कैरी सिनेरियो है. एज एन एंटरप्रेन्योर ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है. एज somebody जिसको जॉब करनी है, जो सिर्फ पढ़ाई करके बाहर निकला है, बहुत स्कैरी टाइम. मुझे क्या लगता है पता है कि देखो 10 साल पहले भी ना सिचुएशन सेम था, 5 साल पहले भी सेम था. मैं बताता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि ये एक्साइटिंग टाइम है इवन फॉर जॉब सीकर्स. ओके, देखो
मेहनत तो उनको करनी पड़ेगी, मेहनत तो पहले भी करनी पड़ती थी, अभी भी करनी पड़ेगी। आपको AI स्किल सीखने पड़ेंगे, आपको अलग टाइप का तरीका काम करने का सीखना पड़ेगा। बट मुझे एक्साइटिंग टाइम इसलिए लगता है क्योंकि काइंड ऑफ जॉब्स जो है ना वो और एक्साइटिंग बनने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो 1 मिलियन जॉब्स थे, 10 लाख जॉब्स थे, उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि बैक एंड रोल्स इतने ज़्यादा थे, एंड बैक एंड रोल्स यार, यू नो, दे सक द ह्यूमन आउट ऑफ यू। ड्यूरिंग द 4 years आप अगर ऐसे कंपनी में बैक एंड रोल में हो जहाँ पे आप एक ही काम कर रहे हो, यू आर फेसलेस, यू नो, आपकी इच्छा चली जाती है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो रिप्लेस होने वाला है, बिकॉज जो ये इक्वेशन है जो मैं पहले बता रहा था कि आप छोटे कंपनी में काम करोगे, आपके पास मैसिव ओनरशिप होगी, आपको सेल्स करना आना पड़ेगा, आप रोज कस्टमर से बात करोगे, आपको रोज एजेंट्स बनाने पड़ेंगे, आपको रोज फाउंडर से बात करके स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी। ये सभी लोगों को करना पड़ेगा, बिकॉज आप मतलब आप विजिबल हो, आप यू कांट हाइड एनीवेयर। एंड उससे मुझे ऐसा लगता है कि अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट गेटिंग वेस्टेड बट हैड अ लॉट ऑफ टैलेंट विल सडनली बी एबल टू डिलीवर। तो उससे एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज GDP? GDP इज नंबर ऑफ पीपल इनटू प्रोडक्टिविटी पर पर्सन। तो उससे अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए हमारे, इट माइट बी अ माइनर शॉक वेयर यू नो वी वर द बैक एंड ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड. Now suddenly we ourselves were a back end office and now we are saying we will become a front end office. तो obviously उसमें यार थोड़ा सा तो डेल्टा होगा जहाँ पे यू नो ऊपर नीचे होगा, आपको पेन थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा, आपको नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, बट दैट इज व्हाई इट्स एन एक्साइटिंग टाइम. एंड MNCs are going to be beaten by startups, and this is my hot take. We'll talk on this, but before we do that, because we're talking about jobs, guys, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही, प्लीज ज्वाइन अस. सेम, प्लीज अप्लाई टू मैसा, वी आर ऑलवेज हायरिंग. सेम, ऑलवेज हायरिंग. अगर आप में फोड़ने की कैपेबिलिटीज है, आप राइटर हो या डेवलपर हो या टेकी हो, इंजीनियर हो, आप जो भी यूट्यूब मैनेजर हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, आप सिर्फ कंटेंट राइटर हो, आप कुछ भी हो, यू कैन टर्न अप एवरी डे, यस, हैव द राइट एनर्जी, हैव द राइट एटीट्यूड, join us. Either you have this ability to learn. हम सिखा देंगे. हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता आप इंजीनियर हो क्या हो. Exactly. You were saying MNCs से ज़्यादा स्टार्टअप जॉब क्रिएट करेंगे. That's your take. क्यों? I mean that's one take. My other take is that a lot of MNCs are going to shut shop because of startups. I mean MNCs बंद हो जाएंगी स्टार्टअप्स की वजह से. Yes, and I'll tell you like 3 reasons मैं बताता हूँ. Because MNCs खरीद नहीं लेंगी स्टार्टअप को जो कर रही है. It's possible, and we'll look at some examples also. कुछ interesting. जैसे for example एक आपको there's a book called The Innovator's Dilemma. हाँ. बहुत सही concept है वो. तो Innovator's Dilemma essentially ये है, I'm sure like people must have read about it. It essentially means that समझो आप एक business चला रहे हो, and 80% of your business comes from a revenue line A. अगर दुनिया तेजी से चेंज हो रही है और वो A का आपको B करना पड़ेगा, तो you face a massive dilemma. And the dilemma that you face is that यार मेरा 80% रेवेन्यू, मैं इतनी बड़ी कंपनी हूँ, मेरा 80% रेवेन्यू A से आ रहा है, अब मुझे मेरे आंखों के सामने दिख रहा है कि A B बनने वाला है, बट मैं कैसे रोकूं इस चीज को. एंड स्टार्टअप्स जो है ना, दे कम विद नो बैगेज, नो हैंगओवर, कुछ नहीं है उनका रेवेन्यू. वो आते हैं, वो बोलते हैं चलो B चल रहा है, B बनाएंगे. And that leads to massive disruption. Let me give you an example. Kodak, people must have heard the story of Kodak. Kodak का कैसा होता था, वो लोग फिजिकल कैमरास बेचते थे. उनका बिजनेस मॉडल ये था कि they don't make money from the camera, they make money from the film. उनमें एक इंटर्न था, उसने बोला सर दुनिया जो है वो डिजिटल बन रही है, हमारे पास इतने कैपेबिलिटीज है, हम लोगों ने डिजिटल कैमरा बनाना चाहिए. उन्होंने बोला अबे इंटर्न हमारा 80% रेवेन्यू फिल्म से आता है, अगर मैंने डिजिटल कर दिया तो मेरा रेवेन्यू चला जाएगा. दे डिड नॉट डू इट. कोडैक गॉन, राइट? डिजिटल कैमराज, देन फोन कैमराज टुक ओवर. फिनिश. बेस्ट एग्जांपल इज ब्लॉकबस्टर एंड नेटफ्लिक्स. ओके, क्या स्टोरी है यार. टेल मी. सो नेटफ्लिक्स भी वैसे ही चालू हुआ ना. वो लोग क्या करते थे कि DVD रेंटल्स उन्होंने चालू किया था.
Netflix went on the कि ऑनलाइन होगा so उन्होंने ऑनलाइन भी लॉन्च किया. मैसिव ट्रैक्शन नहीं था. They were almost about to die as a company when Reed Hastings, the CEO, went to the Blockbuster CEO कि हमारे पास ये ऑनलाइन कैपेबिलिटी है, आप $50 मिलियन में नेटफ्लिक्स खरीद लो. $50 मिलियन में नेटफ्लिक्स आप खरीद लो. ब्लॉकबस्टर सीईओ ने बोला कि मेरा why would I go online? Because 80% of my revenue comes from late fees. Basically आप DVD जब लेते हो तो आप लेट देते हो क्योंकि यार सो रहे हो whatever. उससे जो फीस मिलते थे वो that was 80% of Blockbuster's revenue. उसने बोला why would I do this? This is the most useless transaction that I'm ever going to do. 10 years later, Netflix has bought Blockbuster. ठीक है. And I don't even know like where Blockbuster went. It completely went bankrupt. So innovator's dilemma is very real. Where I feel that a lot of MNCs, they have this huge ship. जहाँ पे थोड़ा भी direction अगर change करना है तो उनको 10 approval लेने पड़ेंगे. Will not be able to turn their ships in a manner where they know that the tsunami is coming. That customer support is going to change from what we have right now to voice with AI. Startup में 4 लोग हैं, वो कर्सर और क्लॉड कोड खोल के बैठे हैं, उन्होंने बना दिया. यहाँ पे चर्चा चल रही है कि हम लोगों ने लॉन्च करना चाहिए क्या. कैनिबलाइजेशन हो जाएगा. कैनिबलाइजेशन इज बेसिकली आप एक चीज चालू करते हो जिससे दूसरे वाले का रेवेन्यू गिरना चालू हो जाता है. हाँ. फिर उसका जो PNL हेड है, जो बाय द वे बहुत पावरफुल है उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसका 80% PNL है, वो बोलता है अरे ये सब मत करो. CEO उसकी बात सुनता है. This happens and has happened over and over again. And it's bound to happen this time. Every time there's a step jump that happens in technology, many MNCs, many industries, shut shop, and this happens. And AI is probably the biggest step jump. Yeah, like let's be very real about everything that's happening. So that's one. Second is speed. In a environment like in a environment where we are right now, where AI is changing the pace, 3 months things are changing, right? The people who are rewarded the most, see, nobody knows what's going to work. Nobody knows. MNC में भी नहीं पता है, startup में भी नहीं पता है. तो it's a discovery phase. During a discovery phase, the company that wins is the one that does the most amount of experiments. Simple. Agreed. MNCs will not be able to do that. Like the number of experiments that a startup can do कि आज कल लॉन्च कर दिया, ठीक है. अब जो बड़े MNCs होंगे ना, वो बोलेंगे नहीं देखो, लॉन्च करने के लिए वी हैव अ लॉन्च चेकलिस्ट, वी हैव अ ब्रांड टू मेंटेन. सो इफ देयर इज एन Amazon, they can't launch a shitty product. A startup has nothing to lose यार. They'll launch a shitty product, they will launch it, customers गाली देंगे, but then जब वो गाली देंगे ना, that startup will discover something that Amazon is not. Amazon लगा हुआ है कि रुको और बेहतर बनाओ प्रोडक्ट को. Amazon has a brand to maintain. So speed will matter a lot. True. And startups will be able to do that. The third, which is according to me the most important one, is talent. Today's talent does not want to be, even if they are paid more, don't want to be in slow moving hierarchical ships. They want to be in high ownership. Speed है, आज कुछ लॉन्च किया, कल कुछ लॉन्च किया, मार्केट में गए, कुछ और हो गया. स्पीड चाहिए उनको. तो जो बेस्ट लोग अगर आप देखोगे ना, तो बेस्ट लोग are not choosing to be in the large ship. They are choosing to be in the small boats. So I feel that this combination of innovation, like innovator's dilemma, talent and speed is going to make sure that there are massive disruptions that happen in the world. And see, I mean, my definition of startup is anything that starts up. मतलब मुझे मेरा ये definition और दुनिया में बहुत लूज है. मेरे हिसाब से फैमिली बिजनेस भी स्टार्टअप ही तो है. क्यों नहीं है वो स्टार्टअप? अगर आप VC से पैसा उठाते हो तो ही आप स्टार्टअप हो क्या? बिल्कुल नहीं. तो मुझे ऐसा लगता है एनी कंपनी दैट स्टार्ट्स टुडे, वो लोग किस टाइप के वीडियोस देख रहे हैं? वो वाई कॉम्बिनेटर के वीडियोस देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं एजाइल प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो एवरी न्यू कंपनी दैट स्टार्ट्स टुडे इज अ स्टार्टअप. आई फील दैट इंडिया रिक्वायर्स अ स्टैनफोर्ड और अ सिलिकॉन वैली टाइप मोमेंट. Do you know the story of like how Silicon Valley became Silicon Valley? So 1930s में Stanford was a regular university. Nothing special about it. ठीक है.
California was known as a barn, like beautiful barn जहाँ पे ना fruits बहुत आते थे, and you know that's it. That's what California was known for in 1930s. Farmer. हाँ मतलब there were a lot of farmlands and greenery, मजा आ रहा है, enjoy करो. Stanford was a very regular university doing regular research. There was a man named Frederick Terman, ठीक है, who is known as the father of the Silicon Valley, right? क्या किया उसने ऐसा? So he was visiting California, fell sick, and you know he was from MIT and he was visiting California. He fell sick. He was teaching at Stanford. वो guest lecture कर रहा था. And you know, as it turns out, that sickness made Silicon Valley. So he fell sick. Because he fell sick, for 1 year he could not move out of California. He fell in love with California. He said कि मैं जो भी करूँगा यहाँ पे करूँगा. Joined Stanford as a computer science teacher. When he joined Stanford, उसका सबसे बड़ा frustration ये था कि मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ और वो जाके ईस्ट कोस्ट पे जॉब्स ले रहे. ईस्ट कोस्ट पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थे तभी. MIT was ईस्ट कोस्ट, जनरल इलेक्ट्रिक्स, GE was ईस्ट कोस्ट. तो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन उसका ये था कि लोग जो है वो मैं सिखा रहा हूँ और उसके बाद वो जॉब्स के लिए जा रहे हैं. तो उसने ना ही सेड कि यार आई एम गोइंग टू स्टॉप टीचिंग एंड आई एम गोइंग टू टीच ओनली वन कोहॉर्ट. एंड ही वाज अ वेरी फेमस कंप्यूटर साइंस टीचर इन स्टैनफोर्ड. And he said, I'm going to take only 60 students. And people were like, yeah, but the demand is very large. And he said that I'm going to do something which is going to reduce the demand. He said, these people need to sign a waiver that once they've taken my computer science course and have graduated as an engineer, they will not take up a job for the next 5 years and will instead build a venture. ठीक है? Nice. He said this. 60 का cohort, मतलब मरते मरते बनते बनते आई थिंक 58 स्टूडेंट्स आए उसके पास. ठीक है. He started working with these students. His first cohort included 2 people called Bill Hewlett and David Packard. Ganti. Right? And essentially these were people who ended up building Hewlett Packard. HP, which was the first original startup in a Silicon Valley. वहाँ पे जो garage है जहाँ पे Hewlett Packard बना था, it's still called the 538 garage because 538 is basically the number of like dollars that were given as angel investment by Silicon Valley and Frederick Terman to Hewlett Packard. Now, not only this, there were other things that he started doing. One was when Hewlett Packard started, he knew that if Hewlett Packard did not grow, his flywheel, he needs to attract really good people into these 60 people, would not get completed. So he used his influence to get the government and some of the large institutions in the country to buy stuff from this startup, which was Hewlett Packard. And the first thing that Hewlett Packard made was something called audio oscillators. I really don't know what they do. I'm assuming कुछ audio equipment रहेगा. And the first purchaser of audio oscillators was Disney. So Disney bought 8 audio oscillators from Hewlett Packard. So you're understanding कि मतलब it's an entire village coming together to build something of value for an entire country, right? That's when the flywheel started. So Fairchild Semiconductors, Intel, all of these started coming from Stanford. Then he started another scheme. जहाँ पे उसने क्या किया कि he started something called Stanford Research Park, right next to Stanford. और he started inviting startups from across the country. आप यहाँ पे incubate हो जाओ, मैं आपको talent देते जाऊँगा. Research के लिए. One very good thing that helped them was great weather. So East Coast was like very cold. West Coast बहुत बढ़िया बान, fruits मिल रहे हैं बढ़िया. They started coming to California. ज़्यादा ठंड नहीं है. 16 degrees to 24 degrees के बीच में उनका temperature होता है. And that's how Silicon Valley started growing, where the talent used to, rather than going for companies, used to work for Stanford Research Park. Stanford में जो भी जाता था ना, उनका गोल क्या था पता है? उन्होंने किसको देखा था? उन्होंने Hewlett Packard को देखा था. तो उनका गोल था मुझे Hewlett Packard बनना है, मैं जॉब वॉब नहीं करने वाला. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया में भी शिफ्ट हो रहा है अभी. नाउ टुडे इफ यू लुक एट स्टैनफोर्ड्स इम्पैक्ट, ये मैं पढ़ रहा था कहीं पे, स्टैनफोर्ड से जो एलुमनाई निकला है, उन्होंने जो कंपनीज बिल्ड की है, उनका अगर तुमने वैल्यू ऐड किया तो इट बिकम्स द 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड GDP वाइज. कौन सी टॉप कंपनीज होगी? गिव मी एग्जांपल्स. आई मीन गूगल,
I mean, that in itself. Apple also sort of Stanford. Apple sort of. Apple is actually, But छोड़ दिया था ना, था तो Stanford में ही. He wasn't in Stanford. He never studied in Stanford. Okay, he was but from he took a course in Stanford, no? Yeah, he only gave a convocation speech at Stanford. Are you but sure? Yeah. He was from Reed College. Okay. Steve Jobs. But क्या पता है कि a lot of engineers, like Apple was Cupertino, na? A lot of engineers were from Stanford, were from Berkeley. Right? So, but in this movie, he's shown walking in Stanford. I don't think so. So he was in Oregon, जहाँ पे Reed College था, जहाँ पे वो calligraphy का वो सब class लेता था. So Steve Jobs was actually not a pedigreed person at all. Like he did not have. Nice. That's a great story. कि कोई brand नहीं था उसके पास. Nice. But he ended up giving the convocation speech in like the Stanford. So there are massive companies that have come out of Stanford, yeah, and the list goes on, and I think India needs a Stanford moment. I think it needs somebody to put a foot down and say that youngsters today need to build. Do you think IIT Delhi is doing in some sort? क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट लोग इस चीज़ से तो इंस्पायर हो रहे हैं ना कि उनके एल्यूमिनाइज ने, उनके जो सीनियर्स थे, उन्होंने बहुत crazy life में वेल्थ क्रिएट करी है फॉर द कंट्री. I think there's Flipkart, there's Zomato. Yeah. These are like great big examples. Now Meesho as well. Yeah. Right. सब एक ही hostels हैं as far as I know. Yeah. So IIT Delhi, BITS Pilani is also doing it. A very good job. They've got incubators. They're trying their level best. But I feel that IIT Delhi has a branding problem. In the sense that I feel that their brand for getting great jobs is so high that I feel that it's still attracting people who wants to do jobs. Who want to do jobs. But I think it's changing. Like, I'm pretty sure that if you were to go to the IIT Delhi campus today and ask them how many of you will eventually want to do a startup, I think 80% लोगों के हाथों. A large number will say 80%. But बच्चे तो बोलेंगे. Because Sachin, Dipinder, they've become the poster idols. boys in the country. Yeah. And that's what I feel. That मतलब मुझे ऐसा लगता है कि there need to be enough universities that are born. And I feel that India's Stanford as a tag is up for the grabs. I don't think that tag exists right now because I think there's an ecosystem that you need to build. जैसे Stanford के side में there is Stanford Research Park that was built. ये सब होना पड़ेगा for that to be built. Would you do it for your students? कि आपके student ने किसी ने startup बनाया and then because you're connected with let's say all the top startups in the country, उनके founders को will you try to bat for them and be like कि इनसे ही खरीदो? Yes. By using your influence. Yeah, मतलब that's the cold start problem ना. मतलब cold start problem solve करने के लिए हम लोग को जो करना है वो हम लोग करेंगे हमारे बच्चों के लिए. हमारे बच्चे तो like I said, जैसे Stanford के लिए Hewlett Packard था. We are trying to create our own Hewlett Packards and people who are wanting to build, we will get behind them and figure out some way. कि उनका अच्छा product है तो you'll try to sell everybody. Yeah. No matter what, like there is all is fair in love, war and startups. I feel that it's actually exciting times for so jobs. Let's say this is exciting times and we have established कि भाई startup बनाओ या खुद की skills develop करो जिससे तुम फोड़ोगे और ये time तुम्हें इतना affect नहीं करेगा जितना दूसरे लोगों को करेगा, right? What should it be? How do we teach people right now कि ये 7-8 चीजें किसी ने सीख ली तो वो एक तरीके से बुलेट प्रूफ हो जाएंगे इन दिस सिस्टम वेयर दे डोंट हैव टू वरी अबाउट मे बी जॉब गोइंग, मे बी इवन स्टार्टिंग अ स्टार्ट. डू यू थिंक लर्निंग दीज बेसिक स्किल्स is it going to be different in jobs and startups or is it going to be the same skills? Like किसी ने कुछ बेसिक स्किल्स सीख ली तो वो स्टार्टअप भी कर सकता है और वो जॉब भी कर सकता है और वो हर जगह फोड़ सकता है. डू यू थिंक दैट्स द केस और दैट्स लाइक डिफरेंट स्किल्स? नहीं. सो आई फील दैट ये पहले अलग था. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो एंड इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी व्हिच हैज 10,000 पीपल, फंडामेंटली डिफरेंट स्किल्स. बट इफ यू आर अ फाउंडर एंड इफ यू आर अमंग्स द फर्स्ट 10 मेंबर्स इन अ स्टार्टअप तो आप में क्या कोई अंतर ही नहीं है. ट्रू. There's hardly any difference. I think first 50 में भी सेम ही होता है. उतनी ओनरशिप होती है. बट बनाए कैसे? द पॉइंट इज हाउ डू आई मेक अ स्टार्टअप जो सक्सेसफुल भी होगा, क्योंकि 82% ऑफ फर्स्ट टाइम फाउंडर्स फेल. वंडरफुल. या राइट. सो देयर ओनली लाइक हैंडफुल. 100 लोग स्टार्ट करेंगे, 82 फेल हो जाते हैं. उसके चक्कर में कोई स्टार्ट ही नहीं करता. करेक्ट. एंड आई थिंक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि यार स्टार्टअप्स आर रिस्की. यार रिस्की तो आपने स्टार्टअप क्यों चालू करना चाहिए?
सी फर्स्टली ना, जब आपने स्टैट भी मुझे बताया तो आपने स्टैट फर्स्ट टाइम फाउंडर्स का बताया. फर्स्ट टाइम फाउंडर्स को सक्सेसफुल होना इवन 18% इज अ लार्ज नंबर. बट इफ यू कैन through that process build the muscle to be able to do certain things and keep on starting things, I'm pretty sure that every single person by the 10th attempt will be able to build at least one thing of value. बट इतना किसी का क्वेश्चन नहीं होता ना, पैसे कहाँ से लाएगा, वो करेगा कैसे, टाइम कैसे करेगा. एंड वो आई थिंक सो मुझे क्या लग रहा है पता है कि वो जो है ना, दिस ऑब्जेक्शन दैट यू हैव कि यार इतना टाइम इतना पैसा हमारे पास रहता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको 10 टाइम्स अटेम्प्ट करने के लिए इतने पैसे या फिर टाइम की भी ज़रूरत है. आई डोंट थिंक दैट इज़ रिक्वायर्ड इन टुडेज़ वर्ल्ड. आई फील दैट इन टुडेज़ वर्ल्ड इफ़ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, एंड मुझे ये भी लगता है कि यार इट टाइज बैक टू एक पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि क्या हम कभी भी किसी को भी स्टार्टअप बनाना सिखा सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फंडामेंटल्स है, उसके बाद देयर इज़ लक, उसके बाद आपका मन है, उसके बाद आपका एफर्ट है, उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं दैट विल नीड टू वर्क. बट मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ द जर्नी कैन बी कंट्रोल्ड. आई फील दैट द 40 to 50% ऑफ द जर्नी आर ऑलमोस्ट हार्ड स्किल्स दैट यू कैन लर्न टू मेक योर सेल्फ सक्सेसफुल. एंड आई फील दैट, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये नहीं कर रहे. और ये अगर वो 6-7 चीज़ें अगर जाने और करे बार बार, तो उनका परसेंटेज चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल बहुत ऊपर चला जाएगा. टेल मी, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो 6-7 स्किल्स हैं जिससे मैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर बनने के मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं. तो पहले स्टार्ट ऑफ करते हैं. आई थिंक एक पहला स्किल जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चूज करना. गिव मी एन एग्जाम्पल, एलैबोरेट. तो मुझे क्या लगता है कि आप भी बडिंग फाउंडर्स से बात करोगे, आप भी यंग फाउंडर्स से बात करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि लोग सॉल्यूशन या फिर प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. तो अगर आपने किसी को बताया कि आप क्या बना रहे हो, मैं एक चप्पल का ब्रांड बना रहा हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं. एक्चुअली आप चप्पल का ब्रांड नहीं बना रहे हो, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि जब मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ तो मुझे कंकड़ लग रहा है. वो प्रॉब्लम है. और वो फंडामेंटली, अब मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर समझो मैं प्रॉब्लम फर्स्ट सीखूं तो मैं जेट पैक बना सकता हूँ जो मैंने पीछे लगाया, जिसके कारण मैं फिर पैर पे ज़मीन ही ना रखूँ, ज़मीन पे पैर ही ना रखूँ, मैं उड़ते जाऊँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्विच करते हो ना, जब आप प्रोडक्ट से प्रॉब्लम के टुवर्ड्स जाते हो, तो आपका चांसेस ऑफ एक्चुअली बीइंग सक्सेसफुल एंड एक्चुअली बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच बहुत बढ़ जाते हैं. क्योंकि अगर आप फंडामेंटली अगर सोचोगे, पैसे बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ती है. आपको वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है और आपको वैल्यू कैप्चर करना पड़ता है. ठीक है, ये बिजनेस स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है. अब वैल्यू कैसे क्रिएट करते हो? प्रॉब्लम्स सॉल्व करके कस्टमर्स के लिए जो प्रॉब्लम्स करंटली सॉल्व नहीं. ओके. आप उनको सोल्यूशन देके वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने सोल्यूशन दिया और उनके पास प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जैसे एक कोट है, 99% ऑफ स्टार्टअप्स डू नॉट फेल बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन, दे फेल बिकॉज द प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व इज समथिंग दैट नोबडी केयर्स अबाउट. नोबडी केयर्स अबाउट दैट प्रॉब्लम. मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं. जब कोविड हुआ था, बहुत स्टार्टअप्स निकले थे, एक्स्ट्रा करिकुलर, ऑनलाइन एक्स्ट्रा करिकुलर्स फॉर किड्स. ठीक है, अगर आप तभी कोई भी फाउंडर के साथ जाके अगर बात करोगे तो आप क्या बना रहे हो? वी आर क्रिएटिंग एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एंड उस पर लोग आ सकते हैं, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इट. इट्स गोइंग टू बी ऑनलाइन, हम लोग हमारा LMS बना रहे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे, हम लोग ग्रेट एक्सपीरियंसेस देंगे. सब बंद हो गए स्टार्टअप्स. मैं बताऊं क्यों बंद हुए? क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर्स का जॉब टू बी डन क्या होता है? एक्स्ट्रा करिकुलर्स का जॉब टू, अभी आई हैव अ 2-year-old डॉटर. अगर फंडामेंटल एक्स्ट्रा करिकुलर्स का जॉब टू बी डन अगर मैं ये बोलूँ तो 2 चीज़ें होती है. बच्चे ने घर के बाहर निकलना चाहिए
ताकि पेरेंट्स को कुछ टाइम बच्चे के बिना भी मिले. दिस इज द ट्रूथ. ठीक है, पेरेंट्स को दे नीड सम टाइम विथ ईच अदर, दे नीड सम टाइम अवे फ्रॉम द किड्स, एंड इट वॉज अ वे टू एंगेज द चाइल्ड. इट वॉज एक तरीका था बच्चों को एंगेज रखने का इन अ गुड एक्टिविटी, जहाँ पे वो दूसरे प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जहाँ पे कुछ सीख भी रहे हैं वो, प्लस वो घर के बाहर है. वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था. अब जैसे दुनिया कोविड से नॉन कोविड में गई, सब बच्चे, एंड दूसरी चीज क्या थी कि इनके जो कस्टमर्स थे वो एक्चुअली बच्चे नहीं थे, वो एक्चुअली पेरेंट्स थे, बिकॉज पेरेंट्स डिसाइड कर रहे थे. तो तुरंत जैसे कोविड खत्म हुआ, पेरेंट्स ने बोला वी वांट द किड आउट ऑफ द हाउस. फिर भेज दो बाहर, क्योंकि अब पूरे कोविड में वो बच्चा बेचारा अंदर बैठा हुआ है, घर में झगड़े हो रहे हैं या मारा तानी हो रही है, अब बाहर भेजो यार उसको. तो सब बंद हो गए. तो द थिंग वाज दैट अगर उन्होंने प्रॉब्लम बैकवर्ड सोचा होता, तो उन्होंने ये सोचा होता कि जॉब टू बी डन पेरेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चों को हम लोग मीनिंगफुली एंगेज रखते हुए घर के बाहर कैसे निकाले. ये प्रॉब्लम था. और ये आप ऑनलाइन के साथ कभी भी नहीं कर पाओगे. एंड देयर आर अ फ्यू स्टार्टअप्स हु हैव सर्वाइव्ड. आई थिंक ओनली 1 or 2 दैट हैव सर्वाइव्ड, व्हिच फोकस ऑन स्किल्स व्हिच हैव नथिंग टू डू विद सोशल एनवायरनमेंट्स. मतलब फिर वो राइटिंग हो सकता है, कुछ और हो सकता है, बट बाकी सब स्टार्टअप्स जो है वो शट डाउन. गिव मी एन एग्जांपल. लेट्स से अगर आपको पॉडकास्ट को अगर ऐसे देखना हो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट प्रॉब्लम आर वी सॉल्विंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट्स से पॉडकास्ट बना रहे हैं, व्हाट प्रॉब्लम आर वी सॉल्विंग? तो मैं 2 तरीके से बताऊंगा. आपके 2 टाइप के पॉडकास्ट है मेरे हिसाब से. एक है दीपिंदर गोयल के साथ, और एक है मे बी लेस नोन फाउंडर्स जैसे मेरे साथ. आई थिंक दोनों का जॉब टू बी डन बहुत अलग है. जब दीपिंदर गोयल के साथ आपका पॉडकास्ट हो रहा है, जॉब टू बी डन ऑफ द व्यूअर इज ऑलमोस्ट बीइंग इन अ रूम विद अ पर्सन दैट दे कैन नेवर बी विथ, व्हिच इज दीपिंदर गोयल. आप बैठे हो, आप उनको बोल रहे हो अरे यार आप जोमेटो में क्या क्या करते हो, वो कहीं इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि आप बैठे हो और तीसरा पर्सन यहाँ साइड में बैठा है और कॉन्वर्सेशन कर रहा है. तो उनको ना दे आर गेटिंग इनसाइट्स इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल दैट दे वुड हैव नेवर गॉटन टू इंटरेक्ट विद. मतलब उनको कभी भी दीपिंदर के साथ उस डेप्थ में बात करने का ना कभी मौका मिलता था, ना उनको कभी जानने का मौका मिलता था. वो मौका उनको मिल रहा है. ये सबसे बड़ा जॉब टू बी डन है कि इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि उनको ना वो थर्ड पर्सन बनना है एक रूम में, और ऐसे रूम में जहाँ पे उनको कभी भी एक्सेस नहीं मिल पाएगा. तो जब आप इसकी हिसाब से अगर सोचोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे पॉडकास्ट है जहाँ पे लोग चिल कर रहे हैं. जैसे जो बड़े लोग हैं, अगर हम जैसे इफ यू लुक एट द WTF पॉडकास्ट ऑल्सो, आई थिंक इट वर्क्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि वो जो रूम है वो इतना चिल रूम है जहाँ पे खाना खा रहे हो लोग, आपको लग रहा है कि आप वहीं पे बैठे हो. आप जब खाना पका रहे हो तो WTF का एपिसोड चल रहा है, या फिर आपका जो 4 घंटे का था अभी वाला वो भी चल रहा है. सो इट्स लाइक, सो दैट्स वन. सेकेंड इज वेरी क्विक वैल्यू एड. मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर मेरा पॉडकास्ट होपफुली अगर देखेंगे तो आई थिंक वो आएंगे कि यार क्या मैं ये 1.5 आवर में ऐसी चीज़ सीख सकता हूँ जो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है. जहाँ पे राज ने ऐसे सवाल पूछे, क्योंकि मैं राज को फॉलो करता हूँ, मुझे पता है कि राज नोच के कुछ ना कुछ तो निकालेगा बाहर. तो क्या मैं ऐसी चीज़ सीख सकता हूँ जो ये आदमी ना सिर्फ अगर अकेला बात करे तो कभी मुझे बताएगा नहीं. तो ये मेरा जॉब टू बी डन है. अगर आपने अभी पॉडकास्ट ऐसा बनाया जहाँ पे हम लोग दोनों बैठे बात कर रहे हैं, हे राज इट्स नाइस टू मीट यू, कोई नहीं देखेगा वो. हम लोग अभी बैठे चिल मार रहे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कॉफ़ी पी रहे हैं, तब जाके लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार वी आर इन दैट रूम. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को ना आप प्रॉब्लम फर्स्ट देख सकते हो, बिकॉज वी डू प्रॉब्लम फर्स्ट अ लॉट. Yeah. For me, podcast is problem first way. आपको क्या लगता है? Like, बहुत सिंपल स्ट्रेट अप देते हैं. मैं तो बहुत सिंपल, मैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे जैसे लाखों और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. सिंपल इज मुझे लाइफ में ग्रो करना है. मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, मेरी रिलेशनशिप्स और मेरे देश में चल क्या रहा है वो जान. ये सब होता है तो मेरा दिमाग अच्छा होता है, मैं बेटर होता हूँ, मेरी ग्रोथ होती है. अब how can I grow in the shortest time possible is what I want to focus on. तो what we do is हम वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों के साथ बैठते हैं ताकि वो हमें कुछ ऐसा सिखा पाएँ जिससे मैं जब घर जाऊँ
तब मुझे लगे, यहाँ जब मैं सुनने के बाद बैठूं तब लगे कि यार आज कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा सीखी जो मज़ा आ गया. समटाइम्स इट कैन जस्ट बी अबाउट माइंड सेट, समटाइम इट कैन बी अबाउट हार्ड कोर प्रैक्टिकल इंसाइट, समटाइम्स इट कैन जस्ट बी अबाउट मेरी हेल्थ में मैं ये ऐड करूँगा तो ऐसा हो जाएगा. एनीथिंग. बट जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, वी बिल्डिंग दिस होल, एवरी पॉडकास्ट इफ यू सी इज जस्ट पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड. अगर उसमें पर्सनली ग्रोथ नहीं हो रही, किसी को कुछ सीख नहीं रहा, तो हम पॉडकास्ट डालते ही नहीं. द होल आइडिया इज एजुकेशन. तभी हमारा पॉडकास्ट एंटरटेनिंग नहीं होता. कोई एंटरटेनमेंट नहीं करते. कोई ज़्यादा हंसी मजाक थोड़ी हो गई तो हो गई, बट इट्स नॉट डिजाइंड फॉर एंटरटेनमेंट और मेकिंग यू फील लाइक कि ओ आज तो क्या मज़े आ गए. कोई मज़े नहीं आया. सीखा कि नहीं सीखा ये बताओ. इनफैक्ट आई वुड लाइक, अगर पॉडकास्ट देखिए, ये पॉडकास्ट है कि आपको लगा बहुत मज़े आया, बहुत जो है, तो मुझे बुरा लग जाएगा कि क्या कर दिया हमने. That's how we think. So first is problem first कि यार आप सोचो, और इसका तरीका ना एक फॉर्मूला भी हो सकता है. मतलब आप एक सिंपल फॉर्मूला लगाओ. आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपने आइडेंटिफाई किया है, आइडियली ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए जो आपने फेस किया है, क्योंकि वरना आप वो समझ ही नहीं पाओगे प्रॉब्लम. फिर आप ना थोड़ा सा एक एस्टिमेट ये कर सकते हो कि कितने ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, उन लोगों को कितना फ्रीक्वेंटली आता है, और उसका इंटेंसिटी कितना होता है. इसको मल्टीप्लाई कर लो आप. मतलब अभी इसका कोई यूनिट्स नहीं होता है, बट आप मतलब स्पिरिट में ले लो इसको कि नंबर ऑफ पीपल इनटू हाउ मेनी टाइम्स दे फेस दैट प्रॉब्लम, और उसकी इंटेंसिटी क्या है. अगर समझो कम लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, साल में एक बार आता है, और जब आता है तभी भी हाँ यार मतलब आता है प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं है कि बाप रे लोग उसके ही बारे में बात करते जा रहे हैं, वही बात करते जा रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं है. तो आपने अगर सोल्यूशन भी बनाया तो ना वो कस्टमर उसके लिए पे करेगा, अगर पे भी करेगा तो ज़्यादा नहीं करेगा, और ऐसे इनफ लोग ही नहीं होंगे जो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे. ट्रू. सो फंडामेंटली आपको सिर्फ ये चूज करना है कि क्या ये प्रॉब्लम बिग इनफ है, और वो बिग इनफ के लिए ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो. एंड देखो मतलब जब हम लोग ने बोल दिया ये अभी चीज़, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सबसे शायद हार्डेस्ट चीज़ टू फिगर आउट है, कि मैं प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व करूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि इफ आफ्टर दिस पॉडकास्ट एवरीवन हु हैज वॉच्ड दिस पॉडकास्ट you know starts noticing problems around them that they were not earlier, starts applying this formula to that problem, then I think it's success. कि अगर क्योंकि वो माइंडसेट आ जाता है ना कि अरे यार गर्मी लग गई, प्रॉब्लम है, क्या है मैं इसको सॉल्व कर सकता, क्या ये ऑलरेडी सॉल्व है प्रॉब्लम, इसका ऑल्टरनेटिव कितना बेहतर है, क्या अभी टेक्नोलॉजी ऐसी मूव हुई है कि मैं ऐसा ऑल्टरनेटिव बना सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम ही ना हो. तो ऐसी जब सोच आ जाती है ना लोगों में, they are much more designed to become successful entrepreneurs, because at the end of the day जो भी successful entrepreneur है उसने बड़ी problem pick करके उसको solve किया. You know, there's a nuance to it जो I learned it from Jeff Bezos, which I really admire. मैं भी ऐसे होता हूँ, problem first, but then ना हर चीज़ हर थोड़े दिन में change हो जाती है. तो it's like दिस इज़ चेंजिंग. तब मैं ये मेरी प्रॉब्लम आज प्रॉब्लम रहेगी कि नहीं रहेगी, अगले दिन आज मैंने सोल्यूशन बना दिया, पूरी मेहनत करके कुछ अच्छी चीज़ बना दी, बट देन 4 साल बाद चेंज हो गई, 2 साल बाद चेंज हो गई, किसी और ने बना दिया, कंपटीशन आ गया. लाइक इट्स दिस ऑलवेज यू कॉन्स्टेंटली यू आर नॉट एबल टू कीप अप विद इनोवेशन, बिकॉज यू डोंट नो how deep the problem is getting and how fast it will change and whether it's a good problem to be solved or not. And what I feel, which I follow this principle a lot, कि जेफ बेजोस बोलता है जब भी तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या कंपनी में बात करते हो, तब ये पूछो कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं मेरे कस्टमर की जो 10 साल बाद भी सेम ही रहेंगी. वो ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की मत कोशिश करो जो तुम्हें लगता है जो 2 साल बाद चेंज हो जाएगी या प्रॉब्लम नहीं रहेगी. करेक्ट. सो आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि कौन सी 2 या 3 चीज़ है जो कस्टमर की प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी ही नहीं. करेक्ट. एंड देन ट्राई टू अचीव दैट. अगर उसके प्रिंसिपल से बिजनेस बनाए तो यू कैन थ्राइव. एंड somebody was asking कि Amazon कैसा, बोलते हैं Amazon में the simple thing is, you were in Amazon so you would know this, स्पीड. कस्टमर को अपना सामान जल्दी चाहिए, कस्टमर को
कम पैसों पे चाहिए और कस्टमर को बहुत बड़ी वैरायटी चाहिए। तो ना वैरायटी कभी ऐसा लगेगा कस्टमर को कि बहुत है, ना कभी उसको ऐसा लगेगा कि अरे 10 मिनट बचा देना, नहीं 2 मिनट बचा राइट, ना कस्टमर को ऐसा होगा कि नहीं मुझे महंगे में चाहिए। These three problems are always going to be there forever. So you optimize for that and just keep optimizing. Yeah. So it just, I think it's crazy insight. And you know, it's mad. मतलब मैं Amazon बता सकता हूँ कि it's a good and a bad thing, but working in Amazon is like working in a cult. मतलब मैं seriously बता रहा हूँ, जैसे Amazon के जब मैं काम करता था 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, अभी वो शायद 16 या फिर 17 हो गया, 2-3 और ऐड, सस्टेनेबिलिटी करके कुछ तो ऐड हो गया। आपका इंटरव्यू, ठीक है, कैसे होता था कि अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए इंटरव्यू कर रहा हूं तो उनके 8 लीडरशिप प्रिंसिपल्स 4 लोगों में बांटे जाएंगे, वो 2-2 लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे मुझे टेस्ट करेंगे। और वो टेस्ट, और मैं बताता हूँ लीडरशिप का जो उनका राउंड है उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता। यू नो, द क्वेश्चंस आर ऑल्सो प्रिडिक्टेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ऑब्सेशन लीडरशिप प्रिंसिपल है, बायस फॉर एक्शन लीडरशिप प्रिंसिपल है, यू नो जजमेंट लीडरशिप प्रिंसिपल है। थोड़े से भूल गया हूँ अभी मैं, नॉट अ ट्रू अमेजोनियन बट नॉट एनीमोर तो बट ऐसे कई सारे हैं और मैं थोड़े से अभी भूल रहा हूँ। बट यू नो हैविंग बैकबोन इज अ, यू नो, एक जो मेरा सबसे फेवरेट यू नो लीडरशिप प्रिंसिपल था, डिसएग्री बट कमिट। जो बेसिकली ये होता है कि अगर झगड़ा हो रहा है ना रूम में तो आप डिसएग्री कर सकते हो, बट जब आप रूम के बाहर जाओगे तो आपको कमिट करना है। तो राइट फ्रॉम हायरिंग आपको एक ही सवाल पूछा जाता है, टेल मी अबाउट अ टाइम यू शोड कस्टमर ऑब्सेशन। तो 8 लीडरशिप प्रिंसिपल्स है जो आपको पीएमिंग में सबसे ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। पीएमिंग इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो वो आपको वही सवाल पूछेंगे, टेल मी अबाउट अ टाइम यू शोड कस्टमर ऑब्सेशन। जब मैं वो स्टोरी बताऊंगा उसमें इतना डीप घुसेंगे वो कि आप मुझे बताओ कस्टमर कौन था। नहीं बट वो असली में कस्टमर था क्या आप कस्टमर से मिले, कस्टमर ने क्या बोला, उसका बिहेवियर क्या था। वो असली में जानना चाहते हैं कि आर यू ऑब्सेस्ड अबाउट कस्टमर्स। नाउ ये एक हुआ। जब आपका क्वार्टरली या फिर ईयरली अप्रेजल्स होता है, यू आर रेटेड ऑन दीज लीडरशिप प्रिंसिपल्स। इन मीटिंग्स आई हैव हर्ड जहां पे लोग जो है वो बोल रहे हैं कि वरुण यू आर नॉट शोइंग कस्टमर ऑब्सेशन। दे आर कोटिंग दिस, मतलब वो अंदर कोट कर रहे हैं, मीटिंग्स में कोट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे सियाटल में जब मैं टीम में काम करता था, दिस इज नॉट मेड अप, हमारे मीटिंग रूम में एक कुर्सी जो है वो खाली रखी जाती थी एंड बॉस बोलते थे कि यहाँ पे कस्टमर बैठा है, ऐसे समझो। तो आप मीटिंग के दौरान ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हो जो कस्टमर को पिस ऑफ करेगा। तो ये जो कस्टमर बैकवर्ड्स थिंकिंग है वो सिंगल हैंडेडली ना मैं अमेजोन से सीखा हूँ। अमेजोन के अंदर आपको अगर कोई भी आइडिया अगर पिच करना है तो आपको एक डॉक्यूमेंट लिखना पड़ता है कॉल्ड PRFAQ। ये तो अभी आई थिंक सबको पता है, प्रेस रिलीज एंड FAQ। बट द मेन कॉन्सेप्ट अबाउट इट इज दैट एंटायर डॉक्यूमेंट इज अबाउट अगर आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कस्टमर्स उसके बारे में कैसे बात करेंगे, बस ये वो डॉक्यूमेंट है। और मैं बताऊं, ये लिखना इज द बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस दैट आई हैड। मुझे ऐसा लगता था अरे यार 6 पेजेस का डॉक्यूमेंट, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो 6 पेजेस तो मैं भर ही दूंगा यार तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से आया हूं, मुझे लिखना तो आता है। बट जब आप लिखते हो ना तो इट देयर इज अ कहावत है ना, इट स्टेज रिटन। आपने एक बार लिख दिया ना, आपने कमिटमेंट कर दिया। बट तो इसलिए क्या हो जाता है कि आप झिझकते हो, फिर आप सवाल पूछने लगते हो कि इज दिस एक्चुअली ट्रू। एंड इसलिए आज भी जब मैं मेसा में समझो अगर नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, आई फर्स्ट विल स्पेंड हाफ अ डे राइटिंग अ PRFAQ अबाउट इट। मतलब वो इतना इंटरनलाइज हो गया ना मेरे अंदर कि जब तक वो PRFAQ लिख के नहीं आता, I can't imagine a program. I can't imagine a new launch. Nice. And I think that is just incredible ki how Jeff Bezos has been able to do it with a company which has 1 million employees. That is insane. Yeah, it's insane. I every time I talk to some Amazon leader, I'm just an Amazon employee or read anything about Jeff. Like one of my favorite entrepreneurs is Jeff Bezos. Have you met just him because by any chance? No. I'm just someday, dying to meet. Someday. Like he's out of all the people you talk about
there are greatest of the greatest entrepreneurs. For me, maybe because I've read about him so much and seen a lot of him, and then, you know, that's, I think I'm just obsessed with it. Yeah. Okay, so problem first, second point. धंधा चमकना चाहिए. I think analytically तो मैं इक्वेशंस बनाता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस आप बना रहे हो, चप्पल का हो किसी और का हो, तो आपको यूनिट इकोनॉमिक्स समझना चाहिए. बाकी सब कुछ सही है. जब आप एक यूनिट ऑफ माल बेच रहे हो, क्या आप कभी भी उस पर पैसा कमा पाओगे? ये आंसर अगर नो है तो वो बिजनेस आपने चालू नहीं करना चाहिए. एंड दैट इज 80% ऑफ द टाइम्स ट्रू, राइट? सो इट अलाउज यू टू लाइक से नो टू अ लॉट ऑफ आइडियाज. जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, लेट्स कम बैक टू से क्विक कॉमर्स. Because so many people are kind of, you know, talking about quick commerce, there are a few metrics that everyone keeps talking about in quick commerce. Now, before naming them, let's try to understand कि उसकी unit economics कैसे होते हैं. तो अगर आप एक डार्क स्टोर लेवल पे अगर देखोगे तो आपको कुछ ऑर्डर्स मिल रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल रहा है आपको, आप पर ऑर्डर पे कुछ मार्जिन पैसे बना रहे हो, माइनस आपको रेंट भरना पड़ रहा है, माइनस आपको वेस्टेज हो रहा है, माइनस मैन पावर, माइनस यूटिलिटीज. मेरे हिसाब से ये इक्वेशन है. ये इक्वेशन मेरे हिसाब से ब्लिंकिट को पता है, जेप्टो को पता है, सबको पता है. अभी ना इसको ब्रेक डाउन करते हैं. तो हम लोगों ने क्या बोला? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू मार्जिन माइनस रेंट माइनस यूटिलिटीज मैन पावर माइनस वेस्टेज. पहले समझते हैं कि इसमें से कौन सी चीजें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. क्या वेस्टेज कर सकते हैं कुछ सप्लाई चेन ऑपरेशंस करके, बट मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी होता रहेगा. हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे उसमें. मतलब अगर इतना सारा डेटा है, मतलब अगर समझो आप और मैं एम्प्लॉय बन गए वहाँ पे, या फिर हम लोग एक स्टार्टअप चालू कर रहे हैं जो क्विक कॉमर्स का स्टार्टअप है, तो हम लोग किसी को तो ब्लिंकिट या फिर यहाँ से हायर करेंगे, उसको बोलेंगे इसका सप्लाई चेन तू डाल दे ताकि इसका वेस्टेज जो है वो इससे कम ना हो. रेंट और यूटिलिटीज हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. हम लोग सबसे अंदर वाले जगह पे, इसलिए अगर आप देखोगे तो कई सारे डार्क स्टोर्स जो है वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे रेंट सबसे कम होता है. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड डार्क स्टोर्स, राइट? तो मैं ऐसी जगह पे लूंगा जहाँ पे वो एक्सेसिबल भी है, बट वो इतने कोपचे में है कि वहाँ का रेंट जो है वो बहुत कम है. मैन पावर के लिए मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा, बट मैं कितना हिला सकता हूँ? मेरे पास दो बच गए, विच इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स और मार्जिन. लेट्स गो डीपर इनटू ईच वन ऑफ देम. नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होता है कि अगर एक डार्क स्टोर है तो उसके अराउंड एक रेडियस है जिसके अंदर आप 10 मिनट की डिलीवरी कर सकते हो. उसके अंदर जितने भी कस्टमर्स है, समझ लो वो हो गया एक्स आपका, या फिर 100,000 कस्टमर्स, 1 लाख कस्टमर्स है आपके. आप 1 लाख का 1,10,000 नहीं कर सकते क्योंकि राइडर तो उसी स्पीड से चला सकता है. तो वो रेडियस तो आपका सेट हो गया. तो योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर एक्चुअली दिस इनटू पेनिट्रेशन परसेंटेज, कि इसमें से कितने परसेंटेज लोग आपका ऐप यूज कर रहे हैं, इनटू वो दिन में कितने बार आपका सर्विस ऑर्डर कर रहे हैं, राइट? तो ये हम लोग ने ब्रेक कर दिया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स है नंबर ऑफ पीपल इनटू पेनिट्रेशन परसेंटेज इनटू कितने बार दिन में वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं. सिमिलरली परसेंटेज मार्जिन के फ्रंट पे हम लोग ने क्या किया? परसेंटेज मार्जिन इज बेसिकली AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, इनटू आपने क्या डील स्ट्राइक किया है ब्रांड्स के साथ. जैसे अगर होल ट्रूथ के साथ अभी उनका टेक रेट जो है वो कम होगा क्योंकि होल ट्रूथ नाउ इज अ ब्रांड एंड कमांड्स, बट जो छोटे ब्रांड्स हैं उनके साथ उनका टेक रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा बिकॉज दे आर डूइंग द ब्रांड्स अ फेवर, राइट? तो एक टेक रेट हो गया, तो AOV इंटू टेक रेट हो गया, माइनस डिलीवरी कॉस्ट हो गए, माइनस पैकेजिंग हो गया, राइट? अभी इसको वापस एक बार ब्रेक डाउन करते हैं. तो अगर हम लोग ने बोला मार्जिन पर ऑर्डर, पैकेजिंग क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? नहीं, वो ऑलरेडी बेसिक होता है. डिलीवरी कॉस्ट क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? अभी के लिए नहीं कर सकते, राइट? तो बच जाता है AOV और टेक रेट. टेक रेट मेरे हिसाब से क्या ही कर पाएंगे और हम लोग, मतलब अभी तो इतना इंटेंस कंपटीशन चल रहा है कि ब्रांड्स के लिए झगड़ा हो रहा है, तो टेक रेट पे तो प्रेशर आएगा ही. वी कैन नॉट डू एनीथिंग. AOV चेंज किया जा सकता है, राइट? सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे साइड पे आए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे आए, तो नंबर ऑफ पीपल है, क्या वो चेंज किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि रेडियस तो उतना ही होगा. परसेंटेज पेनिट्रेशन, मुझे ऐसा लगता है कि इतने एड्स के बाद जिसको खरीदना था ना आपसे, वो ऑलरेडी खरीद रहा है. वो पेनिट्रेशन हम लोग और बढ़ा नहीं सकते, बट आप नंबर ऑफ टाइम्स दैट दे आर ऑर्डरिंग वो आप बढ़ा सकते हो, रिपीट रेट बढ़ा सकते हो.
So now वो जो पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स का इक्वेशन था lies upon two things that quick commerce needs to solve for them to be successful at a dark store level, which is AOV and repeat rate. And that's why you'll see कि quick commerce में these are the two things that are always quoted कि Blinkit का क्या है, Swiggy का क्या है, Zepto का क्या है. I think ये जो ability है ना कि हम लोग एक बिजनेस को ले उसको ऐसे बिछा दे, उसको अंडरस्टैंड करे कि कौन से लीवर्स अवेलेबल है. नाउ फॉर एग्जांपल कल अगर समझो ड्रोन डिलीवरी आ गया तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा, इक्वेशन यही रहेगा. बट चीज़ें क्या चेंज हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका रेडियस बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ पीपल दैट कैन बी सर्विस्ड बाय अ डार्क स्टोर बढ़ जाएगा. तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स अपने आप बढ़ जाएंगे बिकॉज यू कैन डिलीवर टू मोर पीपल. शायद आपका डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाएगा इन द बिगिनिंग क्योंकि द टेक्नोलॉजी इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, उसमें फेलियर भी होगा, वो गिर जाएंगे ड्रोन्स वट एवर. But at the same time, because number of orders ऊपर चला गया है, you'll be able to kind of, match that. So, just an example. अभी ये और एक example हम लोग ले सकते हैं कि quick commerce tier 2, tier 3 में काम क्यों नहीं करता. वो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वो 10 मिनट डिलीवरी के अंदर population density कम है. बहुत कम. तो जो लोग हैं वो कम है, तो the number of orders are less. So, number of orders are not enough to justify the costs that happen at a dark store level. तो देखो ये अभी हम लोग काफ़ी डिटेल में चले गए क्विक कॉमर्स के अंदर. ये मैं आई एम नॉट सेइंग कि हर एक जन ने बिफोर दे आर स्टार्टिंग अ बिजनेस ये करना चाहिए, राइट. बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस ये समझना चाहिए कि ये बिजनेस बनाने के लिए वो 2-3 चीज़ें ऐसी क्या है जो मुझे करेक्ट करनी ही पड़ेंगी. ट्रू, राइट. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज धंधा चमकना. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स. आई थिंक इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपका वो मेन मेट्रिक क्या है और वो 2 या 3 चीजें क्या है जिससे ये धंधा बनता है. फेयर. व्हाट्स थर्ड? या थर्ड मेरे हिसाब से अगेन मैं जेनेरिक से चालू करूंगा कि आपको ना आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट, ओके, वो टेक प्रोडक्ट हो या फिर फिजिकल प्रोडक्ट हो, 2 हफ्ते में लॉन्च करना आना चाहिए. 2 हफ्ते में. And what I mean by that is that मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता कि क्या मार्केट में चलने वाला. अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, आपने थोड़ा सा धंधा उस पर सेंस लगाया कि ये चलेगा कि नहीं, इससे पैसे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं. अभी अगला है कि आपको मार्केट में ट्राई करना है. आपको ये समझने के लिए कि क्या ये बिजनेस बन सकता है, आपको सिर्फ ये चीज़ जो है ना वो आपको एक ही इंसान बता सकता है, आपका कस्टमर. तो आपको ना ये प्रोडक्ट तुरंत कस्टमर तक लेके जाना है. आपको उस पर काम करते नहीं रहना है. 1 साल के लिए हम लोग उस पर ही काम कर रहे हैं, वही सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं. आपको वो नहीं करना है, आप यू हैव टू हिट द कस्टमर्स. तो इसलिए मेरा मानना ये है कि से अगर मैं चप्पल का ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ और मेरे चप्पल के ब्रांड में एक जेट पैक है जिससे आप उड़ सकते हो और रास्ते पे फास्ट जा सकते हो. ये मेरा चप्पल है. अब मैंने क्या किया है कि मैंने देखा कि लोगों को ना बहुत फास्ट चलना होता है और कई सारे लोग हैं जो बूढ़े हो गए रहते हैं, उनको चलने में दिक्कत आती है, तो उनको फास्ट चलना है. ये मेरा प्रॉब्लम, ये मेरे को सॉल्व करना है. मैंने थोड़ा सा मैथ कर लिया, यूनिट इकोनॉमिक्स लगा दिया और मैंने बोल दिया कि अगर मैंने इसको प्राइस किया तो इनफ कस्टमर्स इसको खरीदेंगे और फिर मैं उससे पैसा बना पाऊंगा. अब अगला स्टेज जो है वो मेरा, वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं वो जेट पैक बनाऊं, क्योंकि बाय द वे इसको बनाने को शायद मेरे को 6 महीने लग जाएंगे. तो समझो अगर मैंने इसको बनाया, 6 महीने लगाए, पैसे लगा दिया, साल भर लगा दिया, फिर लॉन्च कर दिया, किसी ने खरीदा ही नहीं, सबसे बकवास काम हो जाएगा वो. तो मैं कैसे करता था ये, मैं एक तुरंत वेबसाइट लॉन्च कर देता था. मैं वेबसाइट लॉन्च कर दूंगा, उस पर मैं अच्छा लिख दूंगा, एक परफॉर्मेंस ऐड बना दूंगा मैं कि जहाँ पे कोई तो उड़ रहा है. वो तो वेबसाइट बना दी मैंने. वेबसाइट बनाना आज के ज़माने में मतलब AI के थ्रू आप एक सिंपल वेबसाइट बना दो, उस पर क्लियर फीचर्स लिख दो कि आपकी चप्पल अलग कैसे है. फिर आपने एक सिंपल सी ऐड बना दी, वीडियो ऐड बना दी, जहाँ पे लोग उड़ रहे हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है उड़ती हुई चप्पल, और आपने इसको लॉन्च कर दिया. मैं 10,000 रुपये लूँगा या और भी कम, 5,000 रुपये लूँगा. परफॉर्मेंस मार्केटिंग में उसको लगा दूंगा. आजकल परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एजेंसीज मिल जाते हैं हु विल नॉट चार्ज यू मोर देन 5% टू रन एड्स. इट्स वेरी चीप. तो मैं 5,000 रुपीज़ दूंगा, एड्स रन करूंगा और उसमें कुछ मेट्रिक्स देखूंगा. नंबर 1 मेट्रिक में ये देखूंगा कि जिनको मैंने ऐड दिखाया था, व्हाट परसेंटेज ऑफ देम क्लिक्ड ऑन द ऐड.
विच इज माई क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं, CTR बोलते हैं, ठीक है। फिर वो वेबसाइट पे आए, फिर मैं ये देखूंगा कि जो लोग वेबसाइट पे आए उनमें से कितने % लोगों ने मेरा फॉर्म, जो भी मैंने वहाँ पे फॉर्म भरा था कि ज्वाइन वेट लिस्ट या फिर इसको खरीदो, आपकी डिटेल्स लिखो यहाँ पे, वो कितने % लोगों ने भरा। ये दूसरा मैट्रिक देखूंगा मैं। तीसरा मैं क्या करूंगा कि जिन लोगों ने भरा उनको मैं कॉल करूंगा और उनको कॉल करके मैं दबा के सवाल पूछूंगा कि आपको ये अगर खरीदना है तो कितने रुपए में आप खरीदना चाहोगे। या फिर मैं ऐसा कभी नहीं पूछूंगा, मैं ये बोलूंगा कि ये 3,000 रुपए का है और रिएक्शन देखूंगा, अरे 3,000 रुपये, अच्छा 3,000 रुपये। तो मुझे वो समझ में आ गया और उससे मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि डिमांड कितना है मार्केट में। अगर समझो CTR बहुत हाई है तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये नीड है मार्केट में, लोगों को चाहिए ये। अगर सही प्राइस पॉइंट मिल गया तो ये लोग खरीद लेंगे। अगर ये लोग वेबसाइट पे आए और वेबसाइट पे अगर मैंने 4 चीज़ें लिखी है कि इससे ये होता है, ये होता है, ये होता है, और फिर भी उन्होंने अगर क्लिक किया, तो इसका मतलब ये है कि वो 4 फीचर्स खरीद रहे हैं वो। मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में आप 1 वीक में ये कर सकते हो। अगर आपके पास एक आइडिया है, यू कैन क्विकली लॉन्च दिस एंड यू विल नॉट रिक्वायर मोर देन 5,000 रुपीज टू लॉन्च दिस एंड जस्ट टॉक टू कस्टमर्स एंड अंडरस्टैंड कि ये चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है। ट्रू। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर। दिस इज गोइंग टू बी, क्योंकि स्पीड, बिकॉज आई फील दैट आप जहाँ पे भी काम करोगे, आइदर एज एन एंटरप्रेन्योर और ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 पीपल, आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आपको कई बार लॉन्च करना पड़ेगा। और आपको मैं बता रहा हूँ, आप जब लॉन्च करोगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें समझेंगे कस्टमर के बारे में जो आपने सोचा ही नहीं है कभी, वो कभी आपको बताने ही नहीं वाला था, क्योंकि कस्टमर तो आके आपको बताएगा नहीं कुछ भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कहावत है कि अगर, तो ये जो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं इसको MVP बोलते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। वो कभी कभी मिनिमम लवेबल प्रोडक्ट हो जाता है, जो भी हो। अभी आजकल मिनिमम इवॉल्वेबल प्रोडक्ट नया आया है मार्केट में, बट इसेंशियली इट्स दैट, राइट। देयर एक कहावत है कि इफ यू आर नॉट एम्बैरेस्ड अबाउट योर प्रोडक्ट, दैट मीन्स यू हैव लॉन्च टू लेट। यू शुड बी एम्बैरेस्ड विथ योर प्रोडक्ट। ट्रू, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है ये स्पीड इज सो इम्पॉर्टेंट। जब आप स्टार्टअप्स में काम करोगे और जब आप MNCs को डिसरप्ट करने जाओगे, आपको ऐसे इंसाइट्स चाहिए कस्टमर से जो MNCs के पास नहीं है। उसके लिए आपको 10 बार लॉन्च करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप लॉन्च करोगे, अगर मैं प्रोसेस आपको बताऊँ तो पहले तो मैं चप्पल वाला लॉन्च करूँगा। मैं 5 लोगों ने साइन अप किया, मैं उनसे बात करूँगा, मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। जो मेरे पहले 100 कस्टमर है ना, वो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेंगे। वो मेरे सबसे बड़े प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, क्योंकि ये 100 लोग ना मुझे ये बताने वाले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि आपने किसको ऐड किया, किसको नहीं ऐड किया। आप गलत कस्टमर्स को ऐड करोगे तो वो आपको गलत रिक्वायरमेंट्स देंगे। अगर समझो मेरे चप्पल वाले एग्जाम्पल में मैंने बच्चों को ऐड कर दिया, तो बच्चे बोलेंगे अरे लाइट्स होने चाहिए, इसमें मजेदार होना चाहिए चप्पल। बट मैं वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो प्रॉब्लम मोबिलिटी का सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप सही कस्टमर्स को चूज करो पहले, बट देन ऐड देम टू अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड कीप लॉन्चिंग अगेन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। यू विल कीप गेटिंग फीडबैक। Look, the giraffe is here. Let's all dance together, kitty.